Welcome back, students. So far, I have discussed the changes in the demand and supply. Now, in this video, I am going to discuss simultaneous shift in demand and supply. So far, we have explained only the effect of the change either in demand or in supply on the equilibrium price and quantity. कहता है कि हमने पिछले जो टॉपिक्स में सिर्फ एक ही का ही चेंज के बारे में डिस्कस किया है. दैट इज आइदर वी हैव डिस्कस द चेंज इन डिमांड और वी हैव डिस्कस द चेंजेस इन द सप्लाई which affect the equilibrium price and quantity. There is also the possibility of the change in demand and supply simultaneously. कहते ऐसे भी चांसेस हैं कि हम जो डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जो डिमांड एंड सप्लाई है वो साइमल्टेनियसली मतलब दोनों इकट्ठे ही चेंज हो. We shall now analyze the effects of the simultaneous changes in the demand and supply on the equilibrium price and quantity. There are the three possible situations in this regard which are as follows. First is when the changes in the demand and the supply are equal. पहले हम फर्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, देन साइड बाय साइड हम सेकेंड एंड थर्ड को डिस्कस करेंगे. इन द फर्स्ट टॉपिक व्हेन द चेंजेस इन द डिमांड आर इक्वल, तो क्या होगा, हम अपना पहले ड्रॉ करेंगे अपने डिमांड एंड सप्लाई को. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट देयर आर द टू एक्सिस. हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, 0. ठीक है जी. along the y axis we mention the prices and along the x axis we mention the quantity. As we know that the dd is the demand curve and the demand curve is the downward sloping curve, and ss is the supply curve and supply curve is the upward sloping curve. The intersection between the demand and supply curve gives the equilibrium point which is represented at E. The point corresponding to the equilibrium point gives the equilibrium quantity and point corresponding to the equilibrium gives the equilibrium price. In this case we are discussing about increase in demand curve and increase in supply curve. In this video we are discussing about this concept. तो हम साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बारे में देखने लगे, जिसमें हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व में जो इंक्रीज होगा आर इक्वल. दैट मीन्स जो भी हम इंक्रीज करेंगे डिमांड में, जितना भी हम इंक्रीज करेंगे डिमांड में कर्व में, उतना ही कॉरस्पॉन्डिंगली सप्लाई कर्व में इंक्रीज होगा. तो उस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा अगर डिमांड कर्व में इंक्रीज हो रहा है 1 सेंटीमीटर का, तो हम सप्लाई कर्व में भी जितना 1 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस आप डिमांड कर्व में इंक्रीज करोगे उतना ही डिस्टेंस आप अपनी सप्लाई कर्व में भी इंक्रीज करोगे. ये डॉटेड लाइन को मैं अटैच कर लूँगी, ज्वाइन कर लूँगी, तो मेरे को न्यू इंक्रीज्ड डिमांड कर्व आ जाएगी. तो एज वी नो दैट आर डिमांड कर्व व्हेन इंक्रीज इट मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो हमारा जो डिमांड कर्व इंक्रीज हुआ है तो उसको जो मैंने नाम दिया है, उसको नाम दिया है D1. अब जो मैं सप्लाई कर्व में इंक्रीज करने जा रही हूँ, सप्लाई कर्व में भी हम 1 सेंटीमीटर का ही इंक्रीज करेंगे. एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट आपका आ जाएगा ये, एंड देन एक पॉइंट हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं. अब इन्हीं पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे so that I shall obtain the new supply curve. The new supply curve is been represented with the name that is S1. This is the increase in a demand curve and this is the increase in a supply curve.
विद इक्वल डिस्टेंस, विद बोथ इक्वल डिस्टेंस, दोनों में ही 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. As we know that the intersection between the new demand curve and the new supply curve gives the equilibrium point, which is E1, and it gives the point corresponding to the new equilibrium point gives the equilibrium quantity, which is Q1, and point corresponding to the equilibrium price, new equilibrium, that is gives the equilibrium price, which is equilibrium price. So as we have observed that when the original demand curve and original supply curve intersect with each other gives the equilibrium price. ठीक है, इक्विलिब्रियम हमें मिला है जिसके कारण हमें जो प्राइजेस थे वो है OP एंड क्वांटिटी जो है वो है OQ. ठीक है, एज द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंक्रीजेज विद द इक्वल रेट, तो क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज की है. ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज की है, बट योर प्राइजेस रिमेन्स द सेम. प्राइजेस कितने रह गए हैं, OP ही है. प्राइजेस हमारे सेम है, इधर जो हम ओल्ड डिमांड एंड सप्लाई कर्व में टाइम पे था और न्यू डिमांड एंड सप्लाई कर्व में भी सेम ही प्राइजेस प्रिवेल करेंगे. तो इस चीज़ की डिस्कशन हम अपनी बुक से करते हैं. उसने बोला है इन दिस सिचुएशन हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम. डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. अब वो बोलता है इन द फिगर 9.6 द DD and the SS are the original demand and supply curve respectively, whereas the broken line D1 and S1, D1 and S1 represent the increase in demand and increase in supply. The diagram clearly shows that the changes in demand and supply are equal. तो ये जो डायग्राम में मैंने बोला है, तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं, डिमांड कर्व जो इंक्रीज कर रही है देन सप्लाई कर्व जो इंक्रीज कर रही है, उनमें जो भी चेंजेस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं. The old and the new equilibrium prices are the same here. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस जो हमारी ओल्ड डिमांड कर्व एंड ओल्ड सप्लाई कर्व से इंटरसेक्शन से मिला है, एंड दी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा मिला है न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन से, वो बिल्कुल सेम है. द ओल्ड एंड द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आर सेम हियर, that is OP, but the new equilibrium quantity increases from PE to PE1. तो हमारी जो क्वांटिटी ही इंक्रीज कर रही है इन दिस केस. अब इसी में ही हमें पता है बेटा जी, जो चेंजेस होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, इंक्रीज का और एक डिक्रीज का. बुक में इंक्रीज का केस एक्सप्लेन है, डिक्रीज का केस एक्सप्लेन नहीं है, तो डिक्रीज का केस हम खुद रिप्रेजेंट करेंगे. और जो हम अपना नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं वो है डिक्रीज इन डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन सप्लाई कर्व व्हेन बोथ द कर्व्स आर इक्वल. ये इस केस में मैंने इंक्रीज का केस एक्सप्लेन किया था, जहाँ पर हमारे डिमांड एंड सप्लाई कर्व दोनों ही इंक्रीज कर रही हैं. बट नाउ वी विल डिस्कस द डिक्रीज का केस. सिमिलरली देयर आर द टू एक्सिस, y axis 0, x axis. Along the y-axis we represent the prices and along the x-axis we represent the quantity. As we know that the DD is a demand curve and SS is the supply curve. The intersection between the demand and supply curve gives the equilibrium point, which is known as E. Now in the case of in this video we are doing the decrease in a demand curve. तो हम क्या करेंगे, डिमांड कर्व को डिक्रीज करेंगे. तो डिमांड कर्व को डिक्रीज कैसे करेंगे, वही सेम इक्वल, उसने बोला है इक्वल. तो जो अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा 1 सेंटीमीटर का ही पॉइंट आएगा. बेटा जी ज़रूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इट कैन बी ऑफ एनी पॉइंट, पर कोशिश करो 1 सेंटीमीटर का रखो क्योंकि वो ठीक रहता है हमेशा. कि 1 सेंटीमीटर का मैंने इंक्रीज़ किया है, डिक्रीज़ किया है, तो डिक्रीज़ की जो डॉटेड पॉइंट्स हैं इसको हम ज्वाइन कर लेंगे. अब डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व को हम रिप्रेजेंट करेंगे
D2 के नेम से। देन हम सप्लाई कर्व को डिक्रीज करेंगे। सप्लाई कर्व कहाँ डिक्रीज होती है? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट ये है तो लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे डिक्रीज होगा 1 2 एंड 3 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। तो उससे डॉटेड लाइंस को मैं ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। तो इसको इसका नाम क्या दे दिया? S2 S2। So students, as we know that the intersection between a demand and supply curve gives the equilibrium quantity। तो ओल्ड डिमांड एंड सप्लाई की जो क्वांटिटी मिल रही है, इंटरसेक्ट करके जो क्वांटिटी मिल रही है वो है OQ, और जो प्राइजेस प्रिवेल कर रहे हैं वो है OP। Similarly, the intersection between the new demand curve and the new supply curve, ठीक है। तो न्यू हमारा डिमांड कर्व जो डिक्रीज हुआ है या सप्लाई कर्व जो डिक्रीज हुआ है, तो जो न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिला है उसको क्या बोलेंगे हम? E2 मिला है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द E2 विच इट गिव्स द प्राइजेस दैट इज OP, सेम प्राइस प्रिवेल हो रहे हैं। वेयर एज ये क्वांटिटी क्या है हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? OQ क्वांटिटी, और क्या होगी हमारी इफेक्ट क्या हुआ? क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो गई है। दैट मीन्स विद द डिक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व योर क्वांटिटी डिक्रीजेज बट योर प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एंड द न्यू प्राइस रिमेन द सेम। प्राइजेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमारे प्राइसेस सेम रहेंगे, बट योर क्वांटिटी डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। With this, I have explained the first effect, पहला इफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है ऑफ द चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। चेंजेस, तो चेंजेस का मतलब क्या आ गया? मैंने आपको इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई कर्व एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई कर्व दोनों एक्सप्लेन कर दिए इन दिस वीडियो। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हेन द चेंजेस इन द सप्लाई इज मोर देन द चेंजेस इन द डिमांड। तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।